Hello, everyone, and welcome to another episode of Conversations. Today, we have with us Dr. Tripti Barthwal. She's the director of Lal Bahadur Shastri Institute of Management and Development Studies. This video is specially for all those who are facing problems once they've completed their graduation. This video is brought to you by EduCoach. EduCoach is India's leading coaching institute aggregator platform, bringing together offline and online form of coaching institutes of the education ecosystem. Our data-driven search engine technology guides aspiring students at each step, assisting them with all their educational uncertainties. We cater both end users and educational channels, which are probably from all streams, namely IIT JEE, NEET, civil services, CA, CS, SSC, government exams, CLAT, CAT, board preparation, school level, and Olympiads, thus building unwrinkled connections between students and coaching institutes. With high maturity leads conversion ratio, we are enabling coaching centers to give maximum time focusing on academics itself, which will definitely translate to better exam preparation and will result to good all India ranks selection ratio from coaching centers. If you are in a lurch of what to do and you've completed your graduation, we feel this video is for you. Dr. Barthwal, thank you for joining us. My pleasure. Straight to the question, ma'am. You are the director of a prestigious institute and you train people for their post-graduation. What is the purpose of MBA? The scope of MBA is so wide. So to tell it in few sentences or in few words, it is very difficult. But to be very, very specific and precise about it, see, the full form of MBA, everybody knows, is Masters in Business Administration. So it is very clear that if one is doing an MBA, then one has to enter into the business world, one has to manage the business. And when we talk about managing the business, then we talk about taking the right decisions for business, earning profits, increasing the market share, and all those things, ensuring that the business grows. Now, why this is very important is, number one, because we all know that business uses certain kinds of inputs or certain resources, be it the human resource or the raw materials or the machinery or the land, whatever. So it uses multitude of resources, and it is very important because these resources are very expensive. They are the cost part of a business. So it is very important that these businesses are these resources are put to the best possible use. So अगर कोई व्यक्ति है जो डिसीजन मेकिंग वाली कैपेसिटी में है किसी बिजनेस में, और अगर वो इन रिसोर्सेस को, संसाधनों को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और इन संसाधनों का वेस्ट हो रहा है, तो क्या होगा? बिजनेस की कॉस्ट बढ़ेगी तो उसका डायरेक्ट असर होगा कि वो कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाएगा, वो फेल हो जाएगा उस केस में। अब एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये हो गई कि माने आपने डिसीजन एक बार ले लिया, बहुत अच्छा ले लिया आपने डिसीजन, सो यू कैन नॉट सिट बैक एंड रिलैक्स बिकॉज बिजनेस ऑपरेट्स इन अ वेरी डायनेमिक एनवायरनमेंट। इतने सारे फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, और समय के साथ जो एनवायरनमेंट है वो आपको कभी अपॉर्चुनिटीज देता रहता है कि आपका मान लीजिए कस्टमर की इनकम बढ़ गई, या गवर्नमेंट ने कोई रेगुलेशंस रिलैक्स कर लिए जिसकी वजह से आपको फायदा मिल सकता है, या आपके सामने चैलेंजेस आते रहते हैं जैसे कि कस्टमर का टेस्ट बदल गया, या जो कॉम्पिटिटर है वो बहुत एग्रेसिव हो गया, प्राइस उसने रिड्यूस कर दी या प्रमोशन बहुत बढ़ा दिया अपना। तो समय समय पे आपका जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है। So if you are not well equipped with all the factors which can influence your business, आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, आप डिसीजन सही से नहीं ले पा रहे हो, तो तभी भी बिजनेस के लिए बहुत डिजास्टर हो सकता है। So इसीलिए मैनेजमेंट एक ऐसा, MBA एक ऐसा कोर्स है जो कि आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज देता है, लाइक वी हैव मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, research methodology, so many subjects that the जो student है उसके पास इतने बड़ी picture आ जाती है सामने that he can assess all whatever impacts the business and then probably take the right decision. So that is it. So MBA, if you are interested in managing a business, because a decision once taken cannot
be taken back. So if at all you are interested, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर क्षमता है एक बिजनेस को संभालने की, तो MBA आपके लिए बना है। मैम, दूसरा सवाल जो मेरा ये है कि आज की डेट में इतने सारे इंस्टीट्यूट्स होते जा रहे हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स खुलते जा रहे हैं, हर कोई MBA ऑफर कर रहा है, तो क्या एडवांटेज होता है एक अच्छे इंस्टीट्यूट का और क्या एडवांटेज होता है MBA का एक स्टूडेंट की लाइफ में, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट की लाइफ में? एडवांटेज तो ये है कि आप अपनी चारों तरफ, मैं जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उनको कहूंगी कि आप बस केवल चारों तरफ देखिए, जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस दुनिया में, ऐसी मुझे लगता नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी जहाँ पे मैनेजर्स ना हो। और अगर मैनेजर्स हैं, इसका मतलब MBA का स्कोप है। आप एविएशन में चले जाओ, FMCG में चले जाओ, आप होटल इंडस्ट्री में चले जाओ, और तो और हॉस्पिटल्स में भी अब, और गवर्नमेंट भी अब मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को हायर करने लग गई है, कंसल्टेंसीज को से हेल्प लेने लगी है। सो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि कोई अगर स्टूडेंट MBA कर रहा है तो उसके लिए एक या दो ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि बाकी के स्पेशलाइजेशंस में या बाकी के कोर्सेज में होता है कि एक दो आपको सेक्टर्स खुलते हैं, यहाँ पे सारे सेक्टर्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं। पहली बात तो ये। और दूसरी चीज ये होती है कि जनरली जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट के बाद, if they go for a professional course like engineering or medical or for that matter law, otherwise क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट के बाद का जो भी ग्रेजुएशन में जो स्टूडेंट इनरोल होता है, उसके लिए वो जो इनरोलमेंट होता है वो जनरली एक स्टेप हायर होता है, इन द सेंस कि वो सोचता है मुझे अपनी एजुकेशन पूरी करनी है और मुझे एजुकेटेड कहलाना है, फॉर दैट मैटर मुझे एक डिग्री लेनी है ग्रेजुएशन की, इसलिए मुझे ग्रेजुएशन करना जरूरी होता है। सो वहां पे इतना ज्यादा वो सोचता नहीं है कि करियर भी क्या चीज हो सकती है। Now when that student reaches the final year of graduation, then suddenly जो लाइफ की realities है उसके सामने आने लगती हैं। तो उसको लगता है कि what should I do next? So he's at crossroads at this point of time. So वहां पे options बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, जितने ज्यादा इंटरमीडिएट के बाद होते हैं उतने ज्यादा ग्रेजुएशन के बाद नहीं होते हैं। और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनमें की एलिजिबिलिटी इतनी इतनी नैरो होती है कि हर कोई ग्रेजुएट उसको वो नहीं कर सकता, फुलफिल नहीं कर सकता। बट MBA एक ऐसा कोर्स है जो कि क्योंकि वो खुद में मल्टीडिसिप्लिनरी है, इसलिए इट काइंड ऑफ एम्ब्रेसेस पीपल फ्रॉम ऑल स्ट्रीम्स। MBA में आप चाहे साइंस से आए हो, चाहे आर्ट से आए हो, चाहे आप कॉमर्स से आए हो, आपने कोई भी कोर्स किया हो, almost every student can enroll themselves from MBA. और आप इससे समझ सकते हैं कि even engineers also after doing their BTech वो भी मैनेजमेंट की तरफ आते हैं, because in organizations क्या होता है कि आप जब केवल आपके पास टेक्निकल डिग्री होती है तो आप टेक्निकल फील्ड तक कन्फाइंड हो जाते हैं, बट अगर आपको हायर लेवल्स पे, टॉप मैनेजमेंट लेवल पे जाना है तो वहां पे आपका काम मैनेजरियल ज्यादा हो जाता है। तो अगर वो आपकी पिक्चर है तो बहुत सारे इसीलिए जो इंजीनियर्स हैं दे विल गो फॉर फॉर द MBA डिग्री। और कई बार स्टूडेंट्स इस बात से बहुत डिसइल्यूजन्ड हो जाते हैं, हमने देखा होगा, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी कोई वैकेंसी निकलती है स्पेशली एंट्री लेवल पे किसी कंपनी में, तो उसमें लिखा रहता है कि ग्रेजुएट्स भी चलेंगे और MBA भी चलेंगे। सो स्टूडेंट्स कई बार ये सोचने लगते हैं ना कि इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है MBA की डिग्री की, जब सब दोनों को ले रहे हैं। सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू क्लैरिफाई हियर टू द स्टूडेंट्स दैट किसी भी काम के 3 पार्ट्स होते हैं, प्लानिंग, डूइंग एंड कंट्रोलिंग। कि आप तय करें कि काम कैसे होना है, उसके क्या टारगेट्स होने हैं, क्या डेडलाइंस होनी है, फिर डूइंग तो करना हुआ, और कंट्रोलिंग मीन्स कि काम सही तरीके से हुआ, उसमें क्या कमियां रह गई, क्या चैलेंजेस आए, हमें अगली बार कैसे और अच्छे तरीके से करना है। सो जब भी हम एंट्री लेवल पर होते हैं तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में डूइंग पार्ट आपको करना होता है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग आपके लिए कोई और कर सकता है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बेसिकली मैनेजरियल फंक्शंस है। बट जब आप हायर पोजीशन पे, जब प्रमोशन की बात आती है, तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप एक्सपीरियंस देखेंगे तो वहां पे जो ग्रेजुएट है, प्लेन ग्रेजुएट है, वो वहीं पर रह जाता है अपनी एंट्री लेवल पोजीशन पे, पर MBA वाले स्टूडेंट को प्रमोशंस मिलते चले जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप हायर मूव करते हैं वैसे वैसे व्हाट हैपेंस, द कंटेंट ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग पार्ट इन योर जॉब इंक्रीजेस, बिकॉज आपके साथ टीम हो जाती है, फिर आप टीम के लिए प्लान करते हो, कंट्रोल करते हो, डूइंग जो है वो पर्टिकुलरली कम होता चला जाता है। इसलिए कई बार एंट्री लेवल्स पे दोनों को इक्वेट कर दिया जाता है, विच इज उससे डिसइल्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। मैम, आत्मनिर्भर has become the word of the day.
रिसेंटली मोदी जी ने बोला कि आत्मनिर्भर बनना है सभी को, और कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप को उन्होंने बढ़ावा दिया है। तो हाउ डू यू सी मैनेजमेंट पीपल, इनको बोला जाता है कि अच्छे मैनेजर्स होते हैं, बट शायद कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत कम होती है मैनेजर्स में। क्यों? क्योंकि उनके पास एक शील्ड होता है एक कंपनी का, कि एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम करना है और एक फिक्स अमाउंट कंपनी से लेना है। पर जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है, एक अपना वेंचर स्टार्ट करने की बात आती है, तो मेनी मैनेजर्स वी सी हैव फेल्ड, ओनली फ्यू 5% or 10% are able to take the entrepreneurial path. So how do you see this, especially when Modi ji has announced कि अब भारत को आत्मनिर्भर बनना है, and in the current scenario काफी सारे MSMEs को लोन दिया जा रहा है और encourage किया जा रहा है। बिल्कुल बहुत जरूरी है, because if everybody will be a job seeker, then there will be no jobs left. So people have to take to this aspect of job creation, which is actually entrepreneurship, right? And as you very rightly said कि entrepreneurship के लिए सबसे important element है the ability to take risk. और रिस्क जो है वो भी, रिस्क डज नॉट मीन कि आप कहीं पर भी जाके अपना पैसा लगा दीजिए या कोई भी जाके डेंजरस उसमें हाथ डाल लीजिए। रिस्क का मतलब होता है कैलकुलेटेड। इन MBA रिस्क इज ऑलवेज कैलकुलेटेड। दैट मीन्स हम पहले कोई भी सिचुएशन के, कहीं कोई भी अपॉर्चुनिटी जो हमारे सामने है उसके हम प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं कि हमें कितना नुकसान होने का इसमें प्रोबेबिलिटी है, कितना फायदा होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर नुकसान होगा तो उसके लिए मेरे पास एक कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए उसको काउंटर करने के लिए। सो वो सब होते हुए तब हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में वी शुड गो, एंड दैट इज व्हाई MBA इज नॉट मियरली अबाउट डूइंग अ जॉब। बिल्कुल सही बात आपने कही है, इट इज ऑल्सो अबाउट thinking that you have to start something from the scratch, bring an idea and उसको आप आगे बढ़ा के ले जाएं। और जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि ये इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, which is very very important, and इसीलिए बहुत सारे जो प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूट्स हैं, इंक्लूडिंग हमारा भी जो इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल्स क्रिएट करे हैं अपने इंस्टीट्यूट्स में, जिससे कि वो स्टूडेंट्स ही एंटरप्रेन्योर, हर कोई स्टूडेंट तो नहीं बनने की सोचता है, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स थिंक दैट लेट मी हैव फर्स्ट एन एक्सपीरियंस ऑफ 5-6 years, then probably I will move on to my venture, which is also perfectly very very practical. बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके अंदर शुरू से ही बहुत क्लियर होता है कि भाई काम तो अपना ही करना है, I have to start my own venture. So these students they do not understand, एकदम उनके लिए वो हो जाता है, they are उनको पढ़ाया सब कुछ जाता है, बट उनको ये नहीं समझ में आता कि हम किससे अपना एक्सपीरियंस, मेरी जो क्वेरीज है मैं कैसे उसको वो करूं, कि कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं। सो उसके लिए जैसे बताया हमारे इंस्टीट्यूट में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में देयर आर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल्स, इंक्यूबेटर्स। हमारे इंस्टीट्यूट का जो ED सेल है, इट इज हैविंग बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि एडवाइजर्स हैं, मेंटोर्स हैं ED सेल के। तो स्टूडेंट्स कैन कांटेक्ट देम फिजिकली, और आजकल तो डिजिटल का जमाना है, आपके पास कोई क्वेरी है आप मेल कर लीजिए, नहीं तो आप फेस टू फेस एक मीटिंग कर लीजिए ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म, एंड यू कैन गेट योर क्वेरीज सॉल्व्ड। आप अपनी जो एंजाइटीज है उनसे शेयर कर सकते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकते हैं। सो एक उससे बहुत इम्पेटस मिलता है एंटरप्रेन्योरशिप। So as Dr. Barthwal said, हर एक इंस्टीट्यूट में एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल होता है जहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है। मैम, MBA की अगर बात करें तो ऐसी क्या स्किल्स हैं जो MBA एज अ कोर्स स्टूडेंट्स को देता है जो उनके लाइफ लॉन्ग काम आती है? As I said, MBA consists of variety of inputs from so many areas. So as such, student के पास बहुत ही बड़ी bigger picture आ जाती है, and mainly with the skills which MBA gives, and the best part of MBA is that it's a very short gestation period. It is like 2 साल में आपको एकदम करियर रेडी, प्रोफेशन रेडी कर देता है। 2 साल भी मे बी it will be around about 20-21 months, it will make you ready, absolutely ready. So उस दौरान में आपको जो टीचिंग, जो ट्रेनिंग मिलेगी in all good institutes, I will not say in all institutes, but yes, in all good institutes which are very very student focused, वहाँ पे जो आपको ट्रेनिंग मिलेगी, it will help you to acquire
conceptual skills wherein you will get to understand कि different जो areas हैं वो एक साथ merge होके उनकी knowledge एक साथ merge होके कैसे हम एक चीज को better कर सकते हैं. And then secondly, you will be good at problem solving and decision making skills, because as I said that there will be so many. It is said, Peter Drucker has said that whatever a manager does, he does so by making decisions. So decision making एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं that whether I should have I taken the right decision or not. So मैनेजर को या जो MBA कर रहा है स्टूडेंट, उसको इतने सारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू गुजरता है, वो केस स्टडीज, रोल प्लेज, मैनेजमेंट गेम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि उसको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे डिसीजन मेकिंग की जाती है. Then third is obviously communication skills, which are very important for a manager. और जब वो इतनी सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, इवन द मोस्ट इंट्रोवर्ट स्टूडेंट ऑल्सो उसके अंदर भी जैसे कहते हैं कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव हो जाती हैं, शार्पन हो जाती है. देन इट ऑल्सो लीड्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन स्किल्स और व्हाट वी कॉल एज पीपल स्किल्स, क्योंकि आप जब भी काम करते हो एज अ MBA स्टूडेंट, you generally work in teams, so you know how to deal with people. Conflict हो जाए तो कैसे resolve करते हैं दो लोगों में, जो कि आपको actual life में बहुत काम आता है. And then as अभी थोड़ी देर पहले हम लोग discuss कर रहे थे कि MBA also leads to development of entrepreneurial skills in students. So by and large ये तो skills हो गई जो develop करता है, but what I will say that overall it leads to improvement in your confidence and the development of the personality of an individual. जो students enroll होते हैं MBA में, वो उनका जो पर्सनालिटी जिस तरह से वो आते हैं और जिस तरह से अगर उन्होंने पूरा जैसे कहते हैं they have made use of every moment of their course, then the way they leave the course or they leave their institute, उसमें जमीन आसमान का positive improvement आ जाता है. बिकॉज इतना ज्यादा जब आदमी इक्विप्ड हो जाता है, उसके पास इतने तरीके के जैसे अस्त्र शस्त्र हो जाते हैं, there are so many arms and ammunitions, so he becomes very confident to fight that battle out in the corporate world. So basically a person enters as a student whenever he enters a college, and when he leaves the college he becomes a man to face the world, man or a woman to face the world. Yes, okay. Next question, ma'am. A bit tricky one because इतने सारे कॉलेजेस होते जा रहे हैं, तो उसमें कैसे सेलेक्ट किया जाए कि बेस्ट कॉलेज कौन सा है? एक क्राइटेरिया होता है कि हमने कैट दिया, कैट के स्कोर पे शायद जो देश के टॉप नॉच कॉलेजेस हैं, जो IIMs हैं, वो तो अलॉट हो जाते हैं, बट जो उतने फॉर्चुनेट नहीं होते हैं या किसी भी रीजन से उतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाई, उतना अच्छा परसेंटाइल नहीं आ पाया, तब क्या किया जाए, कैसे चूज किया जाए? हर जगह MBA होता दिख जाता है हमें, तो उसमें कौन सा बेस्ट है, वो कैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रखा, बिल्कुल, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहते हैं इस बात से. और मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि इन योर पेरेंट्स जनरेशन very limited choice was a problem, it was a challenge, ये choice ही नहीं थी. और आपकी जनरेशन में too much of choice and overabundance is a problem, क्योंकि फिर आपको हमेशा ये रहता है, एक dissonance रहता है कि मैंने सही decision लिया कि नहीं, have I enrolled at the right place or not. So मैं ये कहूँगी स्टूडेंट से, देखिए बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट बहुत कुछ क्लेम भी करते हैं, बट मैं ये कहूँगी कि आपको बस 4-5 चीजों का ध्यान देना चाहिए जब आप एडमिशन ले रहे हो. The first thing which you should look for is the institute's credibility, कि वो कितना पुराना है, उसकी इमेज कैसी है, गुडविल मार्केट में कैसी है, क्योंकि जो एथिकल प्लेसेस होती हैं वहीं पर आपको सही तरीके का जिसे कहते हैं कि एक राइट इनपुट मिलेगा, और आपको जो जिस पर्पस से आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो वो पर्पस भी आपका तभी सॉल्व होगा जबकि इंस्टीट्यूट खुद में ऑनेस्ट है, कमिटेड है. Second thing which you should focus on, the kind of faculty they have, because आपकी पूरी की पूरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो लर्निंग है, वो फैकल्टी की क्वालिटी पे डिपेंडेंट होगी.
बिकॉज दे आर द जिसे कहते हैं कि प्रोसेसर्स या जो जो पूरी प्रोसेसिंग आप पे करते हैं. सो अगर उसकी क्वालिटी, कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर कि इंटेलेक्चुअल रिसोर्स की क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता है, एंड बस ये देख लिया जाता है कि अच्छा ठीक है चलो रख लेते हैं, अभी जरूरत है तो रख लेते हैं. So that should not be the case. The faculty should be qualified. The faculty should be experienced. और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हर साल faculty बदल रही है. इसका मतलब that does not give a very good impression about that institute. कुछ ना कुछ जब तक फैकल्टी में स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक वो बेस्ट परफॉर्मेंस क्लास में नहीं आ पाएंगे. देन द थर्ड थिंग व्हिच दे शुड लुक फॉर इज द एक्सपोजर व्हिच दे विल बी गेटिंग फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट. कितनी वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज होती है, और यहाँ पे एक्सपोजर का मतलब केवल मेरा पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है. यहाँ पर एक्सपोजर से रिलेटेड है दैट अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज बीइंग टॉट इन द क्लास, व्हाट आर द काइंड ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, व्हाट आर द काइंड ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज. क्या वहाँ पे सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, गेस्ट लेक्चर्स होते हैं कि नहीं, whether they go and allow the students to go out and get for certain internships, short term internship programs होते हैं कि नहीं होते हैं, या फिर different variety of plant visits, different organizations में जाके experience लेने को मिलता है या नहीं मिलता है. So and उसके अलावा cultural, sports, fitness, हर चीज से related exposure मिलता है कि student को. So ये इस बात का ध्यान देना चाहिए. And next thing is obviously whether the institute is having a student-centric approach. That means whether it is being run only like a place wherein students come, they take their degree, they move out, or is it like मेरा ये student है, ये मेरा resource है, इसको मुझको process करके, इसको मुझको polish करके जैसा आया है उसको you convert diamond out of something which is actually diamond, but it is not being treated, वो polished नहीं है इसलिए वो diamond नहीं दिखाई दे रहा है. So हमको हर resource को उसी तरीके से treat करना. तो अगर कोई institute इस तरह से नहीं treat कर पा रहा है, that means that is not the right place for you. And finally, the placement of the institute. Because आप join ही professional course इसलिए कर रहे हो because you want a career, you want a job. So आपको देखना चाहिए कि वहाँ पे previous placements का क्या record है, alumni का क्या network है, alumni इस समय किस positions पे काम कर रहे हैं, किन organizations पे काम कर रहे हैं. So as I said that these are the 5 criteria which आप खुद भी सोचिए, 1 मिनट ध्यान से सोचें, जो students हैं वो सोचें कि इन 5 के अलावा क्या long term में कोई और चीज matter करेगी. कोई और चीज मैटर करेगी ही नहीं लॉन्ग टर्म में, केवल ये 5 चीजें मैटर करेंगी कि उसी से उनका जो सक्सेस है वो डिटरमिन. So I think they should go for this. They should not go for what the institute is offering. They should go for what they want from the institute. Very rightly said, ma'am. आपने जो 5 क्राइटेरिया बताए हैं, एंड अगर आपने ये स्किप कर दिया है बीच में, तो मैं चाहूंगा जब आप इसे YouTube पे देखें तो वापस जाके इस 5 क्राइटेरिया को दोबारा सुन लें, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस इंटरव्यू का, जहां पे मैम ने 5 क्राइटेरिया बताए हैं. अगर आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं अपने लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए MBA का, तो ये 5 क्राइटेरियाज हमें लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, स्ट्रीम्स की अगर बात करें, काफी सारी स्ट्रीम्स होती है एंड कई बार लोग ऑप्ट करते हैं स्ट्रीम्स पीयर प्रेशर में, या कुछ अच्छा लग गया, कुछ बहुत ज्यादा अपील कर गया. व्हाट डू यू सजेस्ट एज एन एक्सपर्ट, व्हाट डू यू सजेस्ट, कौन सी स्ट्रीम किसके लिए सही होती है? एंड आज के टाइम की अगर बात करें तो कौन सी स्ट्रीम है जो सबसे ज्यादा डिमांड में है? मैं ये कहूंगी कि अभी जो स्टूडेंट्स एस्पायर कर रहे हैं MBA के लिए, पहले तो अभी से इमीडिएटली अभी परेशान होने की जरूरत नहीं स्ट्रीम के लिए, क्योंकि स्ट्रीम जो है वो जनरली या तो सेकेंड सेमेस्टर से आती है या थर्ड सेमेस्टर से आती है. तो सेकेंड ईयर से, फर्स्ट ईयर इज मोर अबाउट बेस बिल्डिंग. जब आपका बेस बिल्ड किया जाता है इंस्टीट्यूट्स में, तो आपको सारे जो स्पेशलाइजेशन है उनका जो बैकग्राउंड है या जो फंडामेंटल्स है वो सबके पढ़ाए जाते हैं. तो पहली बात तो ये है कि जब आप उनको पढ़ते हैं तभी आपको काफी यू गेट एन आइडिया वेदर आई एम लाइकिंग दिस सब्जेक्ट, इट इज मैचिंग विद माय एप्टीट्यूड और नॉट. और दूसरी चीज मैं जो कहना चाहूंगी कि please follow your passion, please follow what suits your personality, what suits your attitude.
please do not go for what is going on in the market, what your, as you said, peer pressure बहुत important role play करता है. Please do not go for what others are doing, and because they may have their reasons, but आपके पास कोई reason नहीं है. आप केवल इसलिए क्योंकि बाकी लोग ले रहे हैं इसलिए ले रहे हो. So that is not at all a valid reason, because सबको life और सबको job अपने अपने अलग अलग करनी है. You may be together at this point of time, but बाद में आप सबको अलग अलग ही काम करना है. So if you feel that you are a very very extrovert person, जिसको कि मजा आता है लोगों को मिलने में, जिसको टारगेट्स में अच्छा लगता है, जिसको कन्विंसिंग करना बहुत अच्छा लगता है लोगों को, so you can go for marketing. अगर आपको बहुत ज्यादा नंबर्स इंटरेस्ट करते हैं, आप बहुत अच्छी एनालिसिस कर लेते हो, आपको फाइनेंशियल मार्केट्स में मजा आता है, उनके बारे में पढ़ने में, समझने में, आपको इन्वेस्टमेंट्स में मजा आता है, हेज फंड्स, ये सब चीजों में, म्यूचुअल फंड्स में मजा आता है, so you can go for finance. अगर आप बहुत ही, आपके अंदर पेशेंस है, आप लोगों को बहुत अच्छा समझ लेते हो, उनसे बहुत अच्छा डील कर लेते हो, so HR can be a specialization for you. So these are certain examples. तो ये तो because every individual is different, आपको खुद अपने को भी एनालाइज करना पड़ेगा. और जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स होंगे, लाइक इन अवर इंस्टीट्यूट, हम लोग 3-4 months before a student has to choose a specialization, हम लोग बराबर उनका ओरिएंटेशन करते रहते हैं कि स्पेशलाइजेशन का, इस स्पेशलाइजेशन के लिए क्या स्किल्स चाहिए, इस स्पेशलाइजेशन का क्या स्कोप है, इसमें एंट्री लेवल पे क्या पोजीशन मिलेगी आपको, आप हाईएस्ट लेवल किस तक पहुंच सकते हैं. सो वी काइंड ऑफ मेक देम अवेयर सो दैट दे कैन टेक द राइट डिसीजन. बट जो डिसीजन है वो आपको खुद ही लेना चाहिए, और जो आपका दिल करे, क्योंकि मार्केट कंडीशन, बाकी सिचुएशन वो बदलते रहेंगे, पर आपका जो दिल है वो आपके साथ ही रहेगा. सो वहां पे आपको बार बार नहीं तो तकलीफ देगा कि आपने गलत ले लिया, सबके वजह से ले लिया. सो आप जो पसंद आए, सबसे अच्छा लगे, वो आप लेके चले. जो दिल कहे वही करना चाहिए. एंड मैम ने भी इस बात पे स्टैंप लगा दी है कि चीजें आप बार बार चूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक बार चूज करिए. दिल आपके साथ हमेशा रहने वाला है. मार्केट कंडीशंस और सारी चीजें वेरिएबल हैं, वो चेंज होती रहती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी. कई बार लोग सोचते हैं कि एमबीए करना है, बट वो रह जाते हैं बिकॉज दे लैक फाइनेंशियली. एमबीए कोर्सेज आजकल इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं. अच्छे कॉलेजेस की अगर बात करें तो फीस लाखों में जाती है. होने को हजारों में भी एमबीए होते हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोस कॉलेजेस बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी एजुकेशन है. तो जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनकी फीस भी काफी अच्छी होती है. तो इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है एमबीए? Firstly, I would like to say that the fees of MBA varies from institute to institute, as you very rightly said also, because बहुत सारे जो institutes होते हैं, because they are autonomous, तो उनके पास ये रहता है राइट कि वो जो भी फीस चाहते हैं वो चार्ज कर सकते हैं. इंस्टीट्यूट जो कि किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, वो उनके ऊपर एक यूनिवर्सिटी का, जिसे कहते हैं, नॉर्म होता है कि वो दे कैन नॉट चार्ज अ फीस बियॉन्ड, एंड विच इज क्वाइट practical also, which is quite rational also. जहाँ तक इसकी बात है कि obviously कोई भी कहीं से भी आप MBA करें, it will be more expensive than a regular graduation or a post graduation course, that is for sure. और वो इसलिए है, और उसको इस नजरिए से देखना चाहिए कि number one, MBA is a gateway or a ticket to your professional career. जो बाकी जो कोर्सेज हैं वो जैसे मैंने बोला कि दे आर पार्ट ऑफ एन एजुकेशन, कि मैंने जैसे 10th कर लिया, 12th कर लिया, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, तो वो आपको एक एक सीढ़ी आपके ऊपर बढ़ रही है. बट अभी भी आप एक ऐसी पोजीशन पे नहीं पहुंचे हैं, जो भी आप जब भी कोई भी किसी भी लेवल पे आप प्रोफेशनल कोर्स करोगे, तो आपको ऑब्वियसली वो एक नॉर्मल कोर्स से आपको वो महंगा पड़ेगा, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपको वो स्किल्स दे रहे हैं, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो एक्सपोजर दे रहे हैं, जो कि आपको एक नॉर्मल कोर्स में नहीं मिलेगा. उसी तरह से उनका रिसोर्स होता है, फैकल्टी रिसोर्स क्वालिफाइड होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है. सो हर चीज को देखते हुए वो और कोर्सेज से थोड़ा सा वो होगा. और दूसरी चीज मैं स्टूडेंट से कहूंगी कि अगर हम इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करके देखें, तो हमको लगने लगेगा कि शायद ये इस तरह से एक्सपेंसिव नहीं है, if we talk in terms of the return on the investment which we are getting.
जब भी आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप ये देखते हो ना, मुझे क्या फायदा मिलने वाला है, मुझे इसका क्या रिटर्न मिलने वाला है। और जब आपको लगने लगता है कि रिटर्न अच्छा है इसका, तब आप उस पैसे को, ज्यादा पैसे को भी इन्वेस्ट करने में आपको बुरा नहीं लगता है। सो आपको जो रिटर्न मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली द मॉनेटरी रिटर्न्स, कि आपको इतने की जॉब लग गई, या आपका करियर बहुत अच्छा शेप हो गया, या आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, वो तो है ही, वो तो मॉनेटरी वो है ही। उसके अलावा जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, आप उसको भी देखिए। दैट एज आई सेड कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें एकदम 360 डिग्री चेंज आ गया, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ गया। आप अचानक से यू वर हैविंग अ स्मॉल, आपका छोटा सा एक दायरा था, और अभी आप एक इतने बड़े नेटवर्क का पार्ट हो गए, जिसमें कि आपके, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में देयर आर अबाउट more than 20,000 alumni, because we are a 36-year-old institution. So more than 20,000 alumni. अब एकदम से आप उस नेटवर्क के हिस्से हो गए, जो कि जब वैसे आपको कॉर्पोरेट में कोई नहीं जानता था, बट बिकॉज यू बिलोंग टू एन एक्स इंस्टीट्यूट, तो आपका सीनियर हमेशा आपको रिकॉग्नाइज करेगा, हमेशा आपको कोशिश करेगा हैंड होल्डिंग की। सो ये सारे जब बेनिफिट्स आप देखेंगे तो आपको लगने लगेगा कि MBA प्रोग्राम is not expensive, it is actually value for. So ROI की अगर बात करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो MBA is the best thing one can have पोस्ट ग्रेजुएशन में. As मैम said, एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है. एक्सपोजर के साथ आपको एक अच्छा एलुमनाई नेटवर्क मिलता है, जो कि बहुत जरूरी होता है सर्वाइव करने के लिए टफ एनवायरमेंट्स में. जब आपके सीनियर्स आपके साथ होते हैं, दे रिकॉग्नाइज यू. और एक मेंटोर की जो जरूरत होती है पूरे लाइफ, कहीं ना कहीं जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं मेंटोरशिप देते रहते हैं हर जगह. मैम, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. अगर सम अप किया जाए एमबीए को, तो व्हाट एग्जैक्टली इज एमबीए एंड व्हाई शुड वन डू इट? मतलब हमने पूरा डिटेल डिस्कस कर लिया है, बट लास्ट कमेंट आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों करना चाहिए एमबीए, क्या जरूरत है कि हम एमबीए ही करें? और भी ऑप्शंस हैं. और कई बार मैंने सुना है ऐसा कि एमबीए को लोग कहते हैं एमबीए तो आलू है, हर किसी के साथ चल जाता है, जैसे आलू हर सब्जी के साथ चल जाता है, एमबीए आलू है. तो क्या एमबीए सचमुच आलू है या फिर एमबीए आलू से अलग है? आलू की तो बिल्कुल सही बात करी आपने, क्योंकि आलू एक ऐसा घर में एक ऐसा सामान है, एक ऐसा रिसोर्स है जिसके बिना किचन इनकम्प्लीट है, जिसके बिना खाना इनकम्प्लीट है. सो वो आलू जिन लोगों को बैंड है, जिनको डॉक्टर ने मना किया है, उनसे जाके पूछिए आलू की क्या रेलेवेंस होती है. सो यस, एमबीए की भी एग्जैक्टली अगर हम उस तरह से देखें तो एमबीए भी, जैसे मैंने कहा, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में खाने में नमक की तरह है. So it is there everywhere. एंड हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, बट अगर मैं एक नटशल में बात करूं तो मैं कहूँगा कि जो एमबीए की रेलेवेंस है वो आपके जो इंडिविजुअल लेवल पर है. जैसे इंडिविजुअल लेवल पर आपके टैलेंट्स, आपका एप्टीट्यूड, आपको जॉब, आपको करियर, जॉब सिक्योरिटी इसलिए क्योंकि आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो. सो आप you can move across organizations. अगर एक जगह आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप दूसरी जगह मूव कर सकते हो, जो कि एक प्लेन ग्रेजुएट के पास वो लिबर्टी नहीं होगी. सो आपको इंडिविजुअल लेवल पे कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, ये बहुत सारे आपको बेनिफिट्स देगी. बट बियॉन्ड दैट ऑल्सो एमबीए जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कंपनी के लेवल पर एमबीएस ना हो, so MBAs bring a lot of innovation. They increase they strategize so that profitability of the organization increases, revenues increase. So वहाँ के लिए they are assets for the organization. जब trained लोग हमारे पास होते हैं तो हमको supervision कम करना पड़ता है, supervision cost हमारी कम होती है, wastages कम होते हैं. So organization की efficiency, उसकी productivity, उसकी profitability बढ़ती है. इसलिए MBA केवल इंडिविजुअल्स के लिए जरूरी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी जरूरी है. और थर्ड लेवल पे it is a very very important degree for the society and the nation itself, because जो economic growth है पूरी की पूरी वो business पे dependent है, और business को सही चलाने वाले लोग जो हैं वो managers ही हैं. अभी आप देख रहे हैं हम we are going through a very very big crisis, COVID-19, और उसमें बार ये बात आ रही है कि economic growth एकदम रुक गई है. क्यों रुक गई है? Because business रुका हुआ है.
business is at standstill. तो जैसे ही बिजनेस रुक जाता है वैसी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है, और उससे क्या होता है, जब बिजनेस चलता रहता है, मैनेजर्स अच्छा काम करते रहते हैं, दे टेक द राइट डिसीजंस, देन इकोनॉमिक ग्रोथ इज हाई, पर कैपिटा इनकम इज हाई, उससे पॉवर्टी रिडक्शन होती है, उससे इक्वालिटी आती है सोसाइटी में, उससे मोबिलिटी बढ़ती है लोगों की, सोशल मोबिलिटी, मतलब कि जो लोग वीकर सेक्शन पे थे वो हायर अपर सेक्शन पे आ गए, और लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटीज, आप देखते हैं कितने रोज माइग्रेंट लेबर्स वापस आ रहे हैं। सो इसका मतलब ये सब कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड थे, और कहाँ पे एम्प्लॉयड थे, दे वर एम्प्लॉयड इन सम अदर बिजनेस, सो दे वर अर्निंग, दे वर सेंडिंग बैक मनी टू, अपने घर भेज रहे थे, वहां का भी लोगों का भला हो रहा था। सो बिजनेस के रुक जाने से और सही चीजें ना होने से बिजनेस में नुकसान ना केवल इंडिविजुअल को होता है, ऑर्गेनाइजेशन को होता है, बल्कि पूरे सोसाइटी, पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड को होता है. सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द राइट decisions by managers, and that is the importance of having an MBA degree. Ma'am, although this was the last question, but since we are talking about the crisis which has occurred due to COVID-19, एक और मेजर प्रॉब्लम है जो आप फेस करेंगे स्टूडेंट्स, वो है जो वो एक्सपेक्ट करते हैं एक XYZ अमाउंट का पर्टिकुलर पैकेज, कुछ रीजंस की वजह से उनका पैकेज रिड्यूस होने वाला है क्योंकि इतना रिसेशन आया है, ये सारी चीजें हुई हैं. तो हाउ शुड वन कोप अप विद दिस? एक एस्पिरेंट जिसने काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया है और वो इस साल पास आउट हो जाता, उसने सोचा था कि शायद मेरा एक्स अमाउंट का जॉब लगेगा, अब शायद वो जॉब लगे x माइनस y अमाउंट का. तो हाउ शुड वन डील विद सच सिनेरियो? Yeah, it is a very, very unexpected and a very unfortunate kind of a situation which we are going through. So it is not only on one country, it is not only on one person, it is not only one part of the business. Every small or big business is being impacted by this. So students who are aspiring or who are doing MBA are no exceptions to the rule. So जब भी सब पर परेशानी आ रही है और सबको इम्पैक्ट पड़ रहा है, सो हमको भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा उस इम्पैक्ट को. जो लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं उन लोगों से आप जाकर पूछिए कि वो लोग कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं. कई जगहों पर ले ऑफ्स हो रहे हैं, रिट्रेंचमेंट हो रहे हैं, कहीं पर सैलरीज कट करी चली जा रही है, बिकॉज किसी के भी हाथ में कोई चीज नहीं है. इट इज नो वे ऑफ, कोई पनिशमेंट नहीं दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है, बट ये कोई और उसका ऑप्शन भी नहीं है. So students should be mentally prepared for this, and as I say that always believing being positive. Why? Because देखिए, अगर हम US में होते, US में क्या है, पूरा सेशन जीरो कर दिया गया है. सो उस केस में पूरा का पूरा एक साल जाता. आप सिर्फ ये मान के चलिए, अगर आपका पैकेज रिड्यूस हो रहा है, तो मैं तो आपसे सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ ये मान के चलिए कि जो मेरा MBA था वो 2 साल का नहीं, वो 3 साल का हो गया है. 1 साल मुझे इंटर्नशिप करनी, तो मुझे कम पैकेज में मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस लेना है, जिससे कि जब मार्केट में इंप्रूवमेंट आए, इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आए, तो मैं इतना बेटर इक्विप्ड हूँ, या मेरा जो टू हैव नॉट हैव अ जॉब इज द worst option when we can have, कि आप ये सोचे कि उन्हें मुझे मेरे मन का पैकेज नहीं मिलेगा तो मैं कहीं ज्वाइन ही नहीं करूंगी. दैट इज अ रॉन्ग डिसीजन व्हिच यू विल बी टेकिंग. बिकॉज क्या होगा कि अगले साल और लोग आ जाएंगे मार्केट में, नए MBAs आ जाएंगे मार्केट में, तब आपको उनसे कॉम्पीट करना पड़ेगा. सो बस ये सोच के चलिए कि मेरी जो MBA है वैसे वो ऑन पेपर कंप्लीट हो गया है, बट अभी मुझे 6 महीने की, 1 साल की इंटर्नशिप और करनी है, जिसमें मुझे सैलरी नहीं, स्टाइपेंड मिल रहा है. ये मुझे सस्टेनेंस अलाउंस मिल रहा है कि मेरे को घर से पैसा नहीं लेना है, पेरेंट्स से पैसा नहीं लेना है, और मैं अपने आप अपने खर्चे इसी में पूरा कर ले हम, और एक्सपीरियंस तो मिल रहा है, उस पर ध्यान. Thanks a lot for joining us. And it was a pleasure. It was indeed a pleasure. This video is brought to you by EduCoach. EduCoach is India's leading coaching institute aggregator platform, bringing together offline and online form of coaching institutes of the education ecosystem. Our data-driven search engine technology guides aspiring students at each step, assisting them with all their educational uncertainties. We cater both end users and educational channels, which are probably from all streams, namely IIT JEE, NEET, Civil Services, CA, CS,
SSC, government exams, CLAT, CAT, board preparation, school level, and Olympiads, thus building unwrinkled connections between students and coaching institutes. With high maturity leads conversion ratio, we are enabling coaching centers to give maximum time focusing on academics itself, which will definitely translate to better exam preparation and will result to good all India ranks selection ratio from coaching centers.